All right. Hello, everyone. Namaskar. Good evening. Welcome to Wednesday, 6 p.m. Another session with me where I'm going to take a lot of questions with respect to your financial market journey. नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ फॉर 30 मिनट्स और सो 30 मिनट रखते हैं बिकॉज गला और सर्दी दोनों की हालत खराब है. तो 30 minutes where I'm going to take as many questions as possible. And tomorrow anyways I'll be going to Pune for an event. तो थोड़ा गला वाला को ठीक रखना पड़ेगा because tomorrow I'm going to speak there also. तो चलिए क्वेरीज लेते हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस में चलते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं. सो मुकेश पारिक जी का क्वेश्चन है, सर लुकिंग बैक at 2 days of the market, Nifty has recovered. But what about those swing traders who have invested looking at momentum in stocks for a very short period of time, like 3 to 4 weeks? Well, let me clarify one thing, Mukesh bhai, that Nifty never fell. आपने ऑब्जर्व नहीं किया इसको. और अगर आप मार्केट को लास्ट 2 दिन का मार्केट देखोगे तो निफ्टी कहाँ गिरा था. लेट मी डू अ स्क्रीन शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू and we discuss this point. Very important point Mukesh has asked, and I think all of us should be there to understand what he's trying to answer, seek the answer for. All right, so this is market for the last 2 days. Look at this. Nifty has been positive. Nifty में fall नहीं आया. Fall कहाँ है? Fall आया बैंक mid cap or small cap में. And if you look at bank Nifty, it has actually been the driver for Nifty to stay above 20,000. So market has not, absolutely not fallen. Okay. Second point, I want to show you something which I have discussed in one of my videos. जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां पर मैंने एक्चुअली बोला था कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब एक्सपेंसिव हो गए. I want to show you a video analysis. Just give me 1 minute, please. इनफैक्ट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको pretty much पता लग जाता है ये कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है मार्केट में. बट लेट मी जस्ट रिपीट फॉर द सेक ऑफ रिपीट. तो दिस इज market. This is the monthly chart of index, mid cap index, and this is the weekly chart. ये weekly chart मैंने आज ही ऐड किया just to see weekly basis पे क्या हो रहा है. टिपिकली देखिए क्या होता है, जब भी मोमेंटम 80 के ऊपर चला जाता है RSI, there is always a chance of a correction. Okay, and this is exactly what happened in mid cap index. ये already weekly chart में भी 80 के पास है और डेली में भी 80 के पास है. There was a chance that market will correct. इसलिए मैं बोल रहा था कि मार्केट ओवरबॉट लग रहा है because momentum absolutely overbought market का momentum है. Similarly, if you look at the data which I shared in terms of market breadth, this was always there in the card. Scary था कि यहाँ पर देखिए मार्केट वॉज निफ्टी 500 का मार्केट ओवरबॉट था. लुक एट दिस, 90% of the stocks were trading above major moving averages. So this is classic overbought market, broad based overbought market, which I mentioned everywhere. Last 2-3 days में मैंने mention किया. In fact, I recorded a video where I congratulated people for 20,000 Nifty. Some of you thought that I am changing my stance from cautious to now bullish. No, I was not doing that. अगर मेरे वीडियो ठीक से देखोगे तो मैंने उसमें क्या बोला था कि इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है. इंडिया ऑलरेडी थोड़ा महंगा हो चुका है. लुक एट द प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स. और अगर आप डेटा देखोगे, डेटा की बात करनी चाहिए, डेटा से रिलेटेड बात करनी चाहिए. नैरेटिव्स मैं नहीं बोलता हूँ, टीवी में चलता है. आई डोंट वांट टू बी अ गाय नोन फॉर नैरेटिव्स. आई वांट टू बी डेटा ड्रिवन गाय. सो यस, करेक्शन हुआ है एज एक्सपेक्टेड. और करेक्शन किस में हुआ है? करेक्शन हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में. निफ्टी के अंदर में करेक्शन नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता निफ्टी में कोई करेक्शन की गुंजाइश है. अगर आप स्टॉक्स में आए हैं और मोमेंटम प्ले कर रहे हैं मुकेश, then you have to understand stocks में momentum is always high risk strategy, and if your momentum dies down you carry the loss of risk of loss. So your stop loss has to be very very good so that अगर आपको लॉस हुआ तो आपको लिमिटेड लॉस हुआ. प्लस जब आप पोजीशन बिल्ड करते हैं तो कोई 5-6 स्टॉक में नहीं बिल्ड करते हैं, आप 20-25 स्टॉक में बिल्ड करते हैं. तो उसमें से 3-4 स्टॉक गलत होंगे, बाकी स्टॉक राइट होंगे. And also I tweeted and I mentioned this in YouTube also, very important point, कि जब भी कोई रैली होती है उसमें स्टॉक्स में जब आप पैसे बनाते हैं, वो पैसे का 20% आपको कभी भी लग सकता है, whenever. तो अगर सपोज मैंने 2 करोड़ रुपया बनाया
तो 40 लाख रुपया मेरा एक दिन में लग सकता है. शुड बी मेंटली प्रिपेयर. अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तो ये मार्केट में आपके लिए जगह नहीं है. आप नहीं यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट होलिस्टिकली. दैट्स माय पर्पस ऑफ बीइंग हियर एंड आई एम श्योर दैट मुकेश यू विल अंडरस्टैंड दिस. अगर मोमेंटम खेलना है तो उसके कई रूल्स ऑफ द गेम्स हैं एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रूल दैट things may go wrong and you need to square up your trade as early as possible. All right. नीरज भाई का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई कनेक्ट विथ यू डायरेक्टली, इज देयर एनी प्रोविजन और कॉल और टीम्स और वन टू वन मीट? वेल नीरज, you need to become member of StockEdge club because you know I'm committed to all of my club members. I talk to them, I discuss with them. So if you really want to have one-to-one conversation with me, you become member of StockEdge club. It's a premium membership, but frankly, the reason of having a premium membership is that I don't want to be available for anyone and everyone, right, all the time. I also value my time, and to basically value, if you don't know how to value your time, basically world will not value you. I have always believed in that theory. तो अगर आप मुझसे वन टू वन करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्टॉकेज क्लब पे मेंबर बन जाइए. आई एम श्योर यू विल नॉट फाइंड you know issue with that because the cost is very very reasonable. How to control greed? Well, why do you want to control it, Sawan? Greed is very important. अगर हम greedy नहीं होंगे तो हम पैसा कैसे बनाएंगे? Greed and fear is a very important part of the market ecosystem. तो वो आएगा ही और हमको आने भी देना चाहिए उसको. प्रॉब्लम इज नॉट कि ग्रीड क्यों है, प्रॉब्लम इज कि जब हम गलत जा रहे हैं तब हम अपने आप को एग्जिट क्यों नहीं करवा रहे, विच इज बेसिकली द स्टॉप लॉस. अगर आप सावन, आई गिव यू हैक, किसी भी स्टॉक में या कोई भी तरह का ट्रेड करो तो एक स्टॉप लॉस को डिफाइन कर लो व्हेनेवर यू ट्रेड, और वो ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे ना तो उसी से ही पता लगेगा. इनफैक्ट टू माय हम ये ट्रेडिंग जर्नल एक we ask people to make a journal like this, which is basically notes plus every trade you are writing where you are actually mentioning the trading karma. और वो ट्रेडिंग कर्मा आप जब अपने आप को इवेल्युएट करते हो तब आपको समझ में आता है कि आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं. तो आई थिंक पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है. डेड बॉडी की भी पोस्टमार्टम होती है. तो आप तो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो तो पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा ना अपने को, है ना. How can I manage my watch list for swing trading? Well, ideally you should have 2-3 defined strategies जिसमें से stocks identify होना चाहिए. जैसे मेरा चार्ट पैटर्न से स्टॉक्स निकलता है, सेक्टर रोटेशन से स्टॉक निकलता है, मेरे स्ट्रेटजीज फीपा ईगल उनसे स्टॉक्स निकलता है. और जब मैं उनको ट्रैकर में डालता हूँ फिर उनमें से जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं जहां मेरे को कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, आई ट्राई टू टेक पोजीशंस इन दो स्टॉक्स. And the position will not be done on a single go that I just buy that stock at one price and give full capital to that stock. No, it always has to be staggered so that as the stock is growing, the price is growing, I am also participating in the growth of that stock. This is momentum investing. But obviously, if you are doing value investing, you buy even if the stock goes down, you keep on adding your position. तो आप कौन हो ये जानना जरूरी है. Do are you a momentum guy or a value guy? अगर ये नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है फिर. All right. How much time did you took to develop trading psychology? I took less time because I was an analyst. तो मुझे 6 महीने में समझ में आ गया था कि सही क्या गलत क्या है. But typically I've seen with my traders almost 2 years, 2 साल लगते हैं, where you actually understand pretty much everything about the market and you act according to that. Today price of Bharti Airtel is greater in equity is greater than futures. Could be two reasons. One, maybe because of dividend announcement. So let me see. एयरटेल के अंदर में डिविडेंड का कोई अनाउंसमेंट है क्या? एक उल्टा बदला तभी होता है जब डिविडेंड होती है या कोई तरह का कॉर्पोरेट एक्शन होता है या पीपल आर एक्सपेक्टिंग स्टॉक प्राइस टू गो डाउन. दैट्स व्हाई द फ्यूचर्स ट्रेड बिलो द कैश मार्केट. सो लेट मी जस्ट सी. कॉर्पोरेट एक्शन में 11 अगस्त फाइनल डिविडेंड 4 रुपया है. तो मे बी अनाउंसमेंट हुआ था, रिकॉर्ड डेट है 11 अगस्त को. तो एक्स जो हो सकता है
एक्स डेट देखना पड़ेगा कि भारतीय एयरटेल का एक्स डेट क्या है। अगर एक्स डेट अगस्त है ना, तो एक्स डेट तो हो ही चुका ऑलरेडी। ओके, so I think it's all because maybe the stock is expected to go down, that's why people are selling. Oh, this is a very good question. Why FIPA stock perform better? Well, you have a great question, and let me compliment you for asking me this question. Okay, so let's go to FIPA. FIPA. So why it performs better? The reason is that, if you look at the composition of FIPA stocks, it's a techno funda combination where there is a price action and there is fundamental reasons for that stock to do well. तो 52 वीक हाई जोन में जो स्टॉक है उसके चांसेस होता है कि दे टिपिकली डू वेल, देन improve return on equity, improve return on capital employed, net profit growth, sales growth, consistent cash from operation. These are very important fundamental reasons for the stock to be good. तो अगर ये स्टॉक्स को मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे जज करूं तो इनके अंदर में फंडामेंटल रीजंस भी है और प्राइस एक्शन को भी अगर मैं जज करूं, सो लेट अस ओपन दिस फाइल एंड फीपा के अंदर में तो ये फीफा के अंदर में जो ये परफेक्ट मैच वाले स्टॉक्स है, दीज आर ग्रेट स्टॉक्स। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन्हीं स्टॉक्स में खाली काम करना चाहूंगा बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्टॉक्स है, इनमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। तो लेट मी जस्ट गो टू फीफा लिस्ट, ऐड दी स्टॉक्स है। तो ये सारे स्टॉक्स में मैं मोमेंटम ढूंढता हूँ और अगर इनमें मोमेंटम मिल जाए, प्लस ऑब्वियसली मेरे को बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका मेरे को बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो स्टॉक के अंदर में काम करना एक्चुअली में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। सो फीपा स्टॉक्स whose business you can understand, you can comprehend, that probably would be the best bet for playing a longer tenure swing in the market. Kindly add exit strategy in StockEdge. Anurag, see, exit is a very subjective terminology. मतलब बहुत मुश्किल है कि आप एक स्टैंडर्डाइज एग्जिट किसी को दे सकते हैं बिकॉज सबकी भूख अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग है। सो आइडियली यू शुड डिफाइन योर ओन एग्जिट स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चार्ट पैटर्न के अंदर में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि से लेट्स टेक एनी स्टॉक फ्रॉम द चार्ट पैटर्न। ओके, सो लेट्स गो टू सिमेट्रिकल एंड लेट्स सी स्टॉक Venetia Organics, okay? और या वो स्टॉक देखते हैं जिसमें एग्जिट हो चुका है, ये तो अभी रनिंग है। तो लेट्स गो टू पास्ट और इसमें चलते IIM Infra। ओके, नाउ जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है, ठीक है, तो उसमें एंट्री आता है और उसमें एग्जिट आता है। यस और नो? कोई भी चार्ट पैटर्न अगर बनेगा तो उसमें एंट्री भी आएगा, एग्जिट भी आएगा, राइट? एंट्री इज टिपिकली दीज ब्रेकआउट पॉइंट्स। पैटर्न जब बना तो एंट्री हो गया, and exit is depending upon two factors, one is price, another is time। ठीक है अनुराग, प्राइस as well as time। प्राइस बेस एग्जिट इज इतना लगने को है, अगर उससे 2 times आ गया तो एग्जिट कर जाओ। so typically say this stock when RS became greater than 0 and RSI above 50, so this, if you buy here, your stop loss is typically previous swing low and your take profit is 2%, 2 times of the stop loss। तो या तो प्राइस बेस एग्जिट होगा या टाइम बेस एग्जिट होगा। तो चार्ट पैटर्न के अंदर में दोनों इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो अगर आप स्टॉकेज के अंदर में देखोगे तो यहाँ रिसेंट है, यहाँ पे स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं जो चालू है अभी और ये खत्म हो गए, इसका मतलब इनका एग्जिट हो गया। तो एग्जिट कोई भी रीजन से हो सकता है, या तो प्राइस बेस रीजन से एग्जिट हुआ है या टाइम बेस रीजन से एग्जिट हुआ है। तो प्राइस बेस रीजन इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। टाइम बेस्ड रीजन कैन स्टिल बी ऑब्जेक्टिफाइड। समझ रहे आपकी बात? प्राइस के जो रीजन होते हैं प्राइस बेस्ड जो रीजंस होते हैं वो बहुत ही इंडिविजुअल है। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा
लेकिन टाइम बेस तो हर कोई स्टडी में टाइम बेस रीजन नहीं मिल सकता है। जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, उसमें तो टाइम बेस रीजन नहीं मिलेगा, उसमें तो प्राइस बेस ही रीजन हमको देखना। सत्यम का क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर आर वर्थ इन्वेस्टिंग इन इंडिया एट द कमिंग 2 years? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सत्यम। चले इस क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करते हैं। और पता है इसका आंसर फंडामेंटली ज्यादा होना चाहिए, टेक्निकली कम होना चाहिए, बट चलो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। टिपिकली अगर मैं 2 साल का व्यू लूं तो जो सेक्टर्स अभी नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ उनके अंदर में होगा और वो चलने लायक बनेंगे। तो डाउन एंड आउट सेक्टर्स, इन पे दिमाग लगाना चाहिए कि वो क्यों डाउन है। जैसे गैस ट्रांसमिशन क्यों डाउन है, क्यों इसमें बाइंग जनरेट नहीं हो रहा है, मस्ट बी सम रीजन। रेटिंग्स जो कि बहुत अच्छे थे एक पॉइंट पे, अभी डाउन है, क्यों डाउन है। तो जो रेड वाले हैं इनको मैं देखूंगा, रेड या पिंकिश टाइप के जो है, इनको मैं देखूंगा कि ये क्यों डाउन हो गए और इनमें कुछ टेलविंड है क्या। दूसरा, कुछ सेक्टर जो ऑलरेडी तेज हैं, इनमें कोई ना कोई फंडामेंटल रीजन होगा, टेलविंड होगा जिसके कारण ये तेज है। जैसे आईटी, अब आईटी आज के रेट में स्ट्रांग है और आने वाले 2 साल में मुझे अगर इन्वेस्ट करना हो तो मैं आईटी में डेफिनेटली करूंगा। एक बार चार्ट भी देख लेता है आईटी इंडेक्स का, क्योंकि अपने डिस्कशन कर ही रहे हैं। और 2 साल का व्यू अगर बना रहे हो तब तो अपने को मंथली और वीकली वाला चार्ट देखना चाहिए, है ना। तो आईटी के अंदर में चलते हैं, तो यहाँ क्या चल रहा है, ये देखो, ये जस्ट मंथली के अंदर में ग्रीन हुआ है, मोमेंटम आया है और ये मंथ का हाई के ऊपर चलना चालू कर दिया है और वीकली में ये काफी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया। प्लस फंडामेंटल रीजन देखोगे तो टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली हार्ट ऑफ द इंटायर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। 2 साल में वो अच्छा होना चाहिए। डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो उसके कारण आईटी के ऊपर में इम्पैक्ट आएगा। रुपी डॉलर, जो हमको लगता है रुपी डॉलर तो ऊपर ही जाना चाहिए, रुपी डॉलर का कोई रीजन नहीं है कि रुपी डॉलर जो है वो 78 79 की तरफ जाए। सो इफ यू लुक एट द मैक्रो रुपी डॉलर, वेयर इज रुपी डॉलर, वेयर इज रुपी 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 रुपी, तो ये ऊपर की तरफ ही लग रहा है। देखो ये एक रेंज में चल रहा है, इसके ऊपर जाने से ये भागेगा। तो अगर रुपी डॉलर 85 की तरफ लगता है तो कौन सा सेक्टर काम करेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे बेट करना चाहिए। बाकी जो टेलविंड वाले सेक्टर्स है जैसे कैपिटल गुड्स है या कमोडिटीज ओरिएंटेड सेक्टर्स है, आयरन स्टील वगैरह, कंस्ट्रक्शन है, होम इंप्रूवमेंट है, ये सारे सेक्टर्स पे भी जब तक इंटरेस्ट है तब तक करो, जब इंटरेस्ट खत्म हो गया उस दिन निकल जाओ। मतलब क्योंकि मैं मोमेंटम वाला ज्यादा हूँ, तो मैं निकलने की भी बात करता हूँ। अक्षित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रियली अप्रिशिएट योर words, kind words. Ayush, my dream. I'm a pro member StockEdge. I lesson your all learning video. Now set my edge for swing trading. Follow Nifty 100. Is it required finding more stock or only stick on Nifty 100 or analysis by stock? I think Nifty 100 or analysis stock ideas generated and hosted in StockEdge social. यहाँ पे जो स्टॉक आइडियाज वगैरह आ रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, चाहे ट्रेडिंग आइडियाज है, जो स्टॉकेज सोशल में है क्लब मेंबर्स लोग के लिए, दीज आर सफिशिएंट फॉर यू टू राइड एनी स्टॉक। अगर आपको करना है तो आप इन्हीं में फोकस करिए, सफिशिएंट है, यू डोंट हैव टू रियली डू समथिंग एल्स बियॉन्ड दिस। व्हाट्स अ गुड रिटर्न इन स्विंग टू ट्रेड 1 or 2 months? नीड अ वेरी प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट आंसर। मेरे हिसाब से हम अगर 20% CAGR, 18 से 22% CAGR जनरेट कर लें स्विंग ट्रेडिंग करके, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सर्दी के कारण थोड़ा हेड अजीब सा माहौल हो रखा है। Everyone, I think I just had interaction with a couple of people and everyone is suffering from this throat and other things right now in India. So 1 to 2 month के लिए वही 18 से 22% I think one should focus, but वो CAGR है, जरूरी नहीं कि हर क्वार्टर में या हर मंथ में उसका रेवेन्यू आएगा ही आएगा। It's a CAGR and one has to understand the concept of CAGR rather than just blindly trusting it.
ये क्या है? कावेरी, हाउ टू स्टार्ट ऑब्सेशन ट्रेडिंग? अरे आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें कि ऑब्सेशन ट्रेडिंग? मुझे लगता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें। अरे ऐसे मत करो यार, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन नॉलेज आप लोग का इतना खराब है कि आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं ऑप्शंस को। स्टॉकेज के अंदर में जाइए, इट्स फ्री, ओके। या लर्न टू ट्रेड में ऑप्शंस, 8 वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। प्लीज ये 8 वीडियो देखिए, आप पहले समझिए ऑप्शंस हैं क्या। और एक बार आपने वो देख लिया, उसके बाद कुछ अगर एडवांस करना हो तो एडवांस करिए। फोकस ऑन बेसिक। या मैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है हमारा, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो आई प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट स्टॉक्स इन पब्लिक फोरम। मैं थीम्स की बात करता हूँ बिकॉज वह अलाउड है थीम्स, जहाँ पे हम जनरल थीम की बात करते हैं, हम लोग स्टॉक की बात नहीं करते। और अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक मुझसे बात करनी हो तो स्टॉकेज क्लब के मेंबर बनने पड़ेंगे, बिकॉज यहीं पर ही क्योंकि ये सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर सकते हैं जो कि हमको लीगली अलाउड है फ्रॉम आवर रेगुलेटर्स। रिजवन का प्रश्न है कि सर आई मेक 25% रिटर्न ऑन कैपिटल दिस फाइनेंशियल ईयर, यस्टरडे आई लॉस्ट 5%, इज इट गुड और बैड? इट्स ओके, इट्स ओके। बिकॉज मैंने कहा ना, 25% का 20% अगर करोगे तो 5% है। तो मेंटली मार्केट में प्रिपेयर रहना चाहिए कि एक टाइम आता है जब आप पैसा बनाते हो, उसमें से 20% आपको लग सकता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव डन, सो डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाउ टू एग्जिट इन्वेस्टमेंट आइडिया इन स्टॉकेज प्रीमियम? वेल, इन्वेस्टमेंट आइडिया के अंदर में एग्जिट करने के दो तरीके हैं। या तो हमने लाल दे रखा है तो आप एग्जिट कर जाइए अगर आपको करना है तो, या it's ideally you should not exit. I mean, these stocks are stocks for long term. So these are not meant for swing trading. These are meant for accumulations for long term. जनरली क्या होता है जब एग्जिट होता है ना, तो यहाँ पर एक लाल डंडी आपको मिल जाएगी जो आपको एग्जिट ऑप्शन दे देगी। जैसे जोमेटो के अंदर में यहाँ पर वो लाल डंडी है जो एग्जिट बोल रही है, और अभी का डेट में यहाँ पर से एग्जिट हट गया है, तो अभी एग्जिट करने के लिए कोई रीजन नहीं है। बट यहाँ जब था तब एक एग्जिट कॉल इसमें आ गया था। Okay, Somik, the biggest question, Dada, money is flowing from small and mid cap to large in last 2 days. Can momentum be placed in large capacity stocks with its inherent quality of lower momentum as compared to mid cap and small cap? Yes. Actually, if you look at the universe of NSE 500, that includes large and medium cap also. So do not be fixated with what capitalization the company is belongs to. अगर उसके अंदर मोमेंटम है और सेक्टर रोटेशन बहुत अच्छा मोमेंटम आइडेंटिफाई करता है, तो आई थिंक आपको ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए लार्ज कैप मिड कैप। अगर सेक्टर रोटेशन में स्टॉक आ रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लीज मेक अ वीडियो फॉर पर्सन हैविंग 2 to 3 लाख। प्रेम, 2 से 3 लाख रुपए स्टॉक मार्केट पे कम होते हैं। तो आप इनिशियल फेज के लिए, लर्निंग फेज के लिए, एक्सपेरिमेंट फेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बट 2 से 3 लाख रुपए से हमको बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे नहीं शेयर बाजार में। और अगर आपको कोई उस तरह का कमिटमेंट दे रहा है ना कि 50,000 रुपए को मैं 5 करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो झूठ बोल रहा है। एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल हु आर सेलिंग ड्रीम्स, हु आर, इनफैक्ट मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ इस बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी ऑल शुड हैव बी माइंडफुल अबाउट दिस पॉइंट that see influencers or people who are trying to sell you dreams by showing fancy cars or by showing their house, by showing the level of achievements they have received. You see, all these sensible people who actually are there in the market for many years, they will not show you glamorous things which typically other people will show to lure you for anything. So, I don't think so. You have seen me showing you anything which has a touch of glamour, because कोई point नहीं है. I mean, whatever you have it. No point in showing to people. So, have a clear cut segregation between people who are selling you dreams and people who really are trying to do something for you.
Now, where do I belong to? Obviously, I am not here to sell you dreams, but definitely I'm an entrepreneur. मैं एक businessman हूँ और मेरे businesses हैं. So StockEdge, Elon Markets, एक ecosystem मैंने build किया. मेरा vision था कि मैं माइकल ब्लूमबर्ग जैसा काम करूँ, इंडिया में कुछ बड़ा करूँ, अपना नाम करूँ. तो मैंने उस दिमाग में रखते हुए मैं सोशल मीडिया में आया एंड आई हैव स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल और व्हाटएवर वे आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस आई हैव डन दैट. ओके, मैं चाहता था तो मैं ब्रोकर बन सकता था. मैं ब्रोकर बनता, डिस्काउंट ब्रोकिंग चालू कर देता और आप लोग मेरे थ्रू ट्रेड करते और आप पैसा खोते. बिकॉज if you see the discount brokers number, big people are making crores and crores and retail people are losing money. इसका मतलब क्या है कि जुआ खेलने वाले को फैसिलिटेट करो और उससे पैसे बनाओ. बट आई हैव नॉट टेकन दैट पाथ बिकॉज आई बिलीव दैट एवरीवन शुड फोकस ऑन लेस इज मोर. जितना कम करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. अगर मैं ब्रोकर बनता तो मैं क्या बोलता, और करो और खेलो इंडिया. बट मैंने वो नहीं पाथ अपनाया. मेरे को लगा कि नहीं भैया, लोगों को बोलो कम करो, लिमिटेड करो, अच्छा करो, राइट? Because I talk a lot of sensible things. That's why, I don't have millions and millions of followers in YouTube, because I realize that as an entrepreneur, you want to limit yourself to only few people who understand you, who understand the thought process of real market participation. तो इसलिए मैंने ये जर्नी ली कि जहां पर मैं जो भी लिमिटेड टाइम देता हूँ, मैं दिन का 1 घंटा देता हूँ ये सब वीडियोस बनाने में. मुझे अच्छा लगता है. I feel delighted when I'm in touch with all of you, and I feel relevant in society. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. तो the broader purpose of me here is not to sell you dreams. It's to give you a perspective and fit myself and my product into that perspective. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है. Do not blindly start blaming influencers, because that's not the right thing to do. बहुत जेन्युइन लोग भी है जो सही काम कर रहे हैं. ठीक है, हर बिजनेस प्रैक्टिस में, हर एक्शन में यू विल हैव क्रुक्स एज वेल एज नाइस पीपल. सेग्रीगेट करना सीखिए. एंड आप जितना फॉलो करोगे उतना समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कौन सही तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, कौन गलत तरीके से आपसे अप्रोच लेना चाह रहा है. सो डू नॉट बी जजमेंटल. Be objective rather than judgmental. That's what I've learned in my academics. पढ़ाई लिखाई करके ये चीज समझ में आता है इंसान को कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर चीज में, डेटा ड्रिवन होना चाहिए rather than narrative driven or judgmental or subjective in your approach, right? तो ये मैं आपसे बात करना चाह रहा था. I hope it was useful. Unfortunately आज और बात नहीं कर पा रहा हूँ because of my throat problem. I'll see you soon. And I'll try to take as many answers, as many questions as possible to kind of help you. You can email me at vivek@stockedge.com. And अगर आपको मेरे साथ रियल टाइम जुड़ना है तो आई थिंक द बेस्ट वे इज स्टॉकेज क्लब. लिटरली डेली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 क्लब मेंबर्स लोग के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ. एंड आई ट्राई टू गाइड पीपल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. अगर आपको लगता हो आपको उससे उसका पार्ट बन के कोई फायदा हो सकता है, to become part of that and become part of my family. Thank you guys, everyone. Have a great life ahead. And people who are there in Pune, I'm coming tomorrow. अगर आप इवेंट में आए हैं तो बहुत अच्छा है. और नेक्स्ट वीक इंदौर है. इंदौर, if you are there in Indore, please come over. बहुत ही मॉडरेट कॉस्ट में पूरा दिन भर का एक एक्सरसाइज होने वाला है. It's literally a cost recovery. But वहाँ पर बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है. And we will obviously try to empower you as much. So पुणे, इंदौर, अहमदाबाद भी आएगा. सब जगह मैं आ रहा हूँ ताकि आपके साथ और मिल सकूं, बात कर सकूं और कुछ सीख सकें, साथ में मिलके ग्रो कर सकें. थैंक यू, बाय, टेक केयर.